are now beginning with the final session of the two-day conclave. Our keynote speaker, the second keynote speaker for today is Dr. Bhushan Kumar Upadhyay. He will be speaking on the topic Sanskrit, Sanskriti and Vishwa. Dr. B.K. Upadhyay is an IPS officer, DG Police and Commandant General of Home Guard, Maharashtra. He is a gold medalist for MA in Sanskrit and a doctorate in phonetics. Dr. Upadhyay is also a writer, poet, and also a Mahapran yoga practitioner. We are extremely fortunate to have you here amongst us, sir, and I would now request you to kindly come up on stage and deliver your keynote address on Sanskrit, Sanskriti, and Vishwa. Huge round of applause for our keynote speaker, Dr. B.K. Upadhyay. सबसे पहले मैं यूथ फॉर नेशन के जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उन सबके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और उसके बाद यहाँ पे बागला मैडम हैं, उनकी पूरी टीम है, उनके प्रति भी मैं ग्रेटफुलनेस व्यक्त करता हूं। मुझे जो सब्जेक्ट के साथ आपके साथ इंटरेक्ट करना है वो सब्जेक्ट है संस्कृत, संस्कृति और विश्व। तो इसके बारे में मैं आपके साथ जो थॉट शेयर करने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से फैक्ट्स पे और हिस्ट्री पे आधारित है। यू हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द कंक्लूजन बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस टू ड्रॉ द कंक्लूजन। In our history, if you read the history, very dangerous conclusions have been drawn. Therefore, use your mind, see what is the fact, what is the truth, and then try to draw your own conclusion. लॉर्ड बुद्धा ने कहा था, एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उनका एक सूत्र है जिसको हम सूत्र बोलते हैं, कलाम सूत्र। उन्होंने बोला था कि डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज टोल्ड टू यू, put it to inquiry, put it to test, try to analyze it and then accept it. इसलिए दोस्तों, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, 34 साल पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ और आप हमारे देश के यूथ हैं, हमारे देश के फ्यूचर हैं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कोई भी कुछ बोलता है तो जब तक उसको आप अपने हिसाब से एनालाइज नहीं करो तब तक डोंट एक्सेप्ट इट। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो मैं आपको संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत जो भाषा है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने और भी जगह सुना होगा। चूँकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ संस्कृत, आई हैव डन माई MA, आई हैव डन माई PhD इन संस्कृत, एंड इवन आफ्टर कमिंग टू द सर्विस आई एम कंटिन्यूइंग दैट। तो बेस्ड ऑन दैट आई एम ट्राइंग टू शेयर माई व्यूज विथ इट। सबसे पहली बात है कि संस्कृत is one of the oldest languages of the world. I will not tell it is the oldest language, but I must tell it is one of the oldest languages of the world. आप हिस्ट्री के किसी भी किताब को उठा लो, चाहे किसी ब्रिटिशर्स ने लिखी हो, चाहे इंडियन ने लिखी हो, चाहे ईरानियन ने लिखी हो, किसी ने भी लिखा, हर एक किताब में आपको बात मिल जाएगी कि जो ओल्डेस्ट लैंग्वेजेज जो वर्ल्ड में है उसमें संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन एडिशन टू बीइंग द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज टोटली बेस्ड अपॉन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक, साइंस ऑफ ग्रामर एंड मोर ऑन साइंस ऑफ फिलोसफी। सबसे पहला जो व्यक्ति है जिसका मैं आपके नाम लूंगा जिसने संस्कृत ग्रामर लिखा, his name was Panini. You must have heard his name. And he was born in India 2500 years ago when the most of the world was living in jungles. He wrote a book on grammar. The name of the book is Ashtadhyayi. It contains 4000 sutras and formulas on grammar and language. Panini was the first person in this world who arranged all the alphabets in a very systematic manner. And there is a
a story behind that, that when Lord Shiva played his Damru, and the sound which emanated from Damru, they got converted into alphabets. Now it is a symbolic meaning, because you know that in most of the world laboratories, the statue of Nataraja is kept there. So that is different thing, we will not talk about that. He formulated and he arranged 14 sutras. And those 14 sutras contain all the alphabets of the world, any alphabet. I am reciting those sutras. It is a little bit very longer and tongue twisting, but you will enjoy it. The first sutra is Ayun, Rilrik, Eoang, Ayawoch, Haywarat, Lana, Yamanganam, Javaya Galadas, Jabagaladas, Kapachat, Kapaya Shakasharahal. All the alphabets, all vowels, all consonants, everything in that. Now, based on that, Sanskrit grammar developed. And if you see the formulas of Patanjali, who came later, after 600 years after Panini, he analyzed all those sutras in a very philosophical manner. As you know, that language evolves. The language of Shakespeare is not today's language of English. Lots of change has taken place. The language which was at the time of Panini evolved, changed. After 200 years, another grammarian came, his name was Katyayana. Therefore, whatever changes have taken place between this period, during the period of 200 years, Katyayana wrote Vartikas. Vartik, it is like sutras, because he explained the changes which had taken place in the language during 200 years. Again, after 200 years, Patanjali came. Again, language, because language is to change. बोलते हैं कि 4 कोश पे पानी बदले 8 कोश पे वाणी. लैंग्वेज आप अगर चले जाओ, बॉम्बे की जो मराठी है वो नागपुर की मराठी से अलग है, कोल्हापुर की मराठी है वो पुणे की मराठी से अलग है, जलगांव की मराठी अलग है. तो as per the place language changes, as per the age and time also language changes. तो पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि ने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि ये 200 years में जो चेंजेस आए हैं, why these changes have taken place, what are the different rules which are governing it. और पतंजलि ने क्या किया कि पतंजलि ने उसका फिलोसफिकल भी एक्सप्लेनेशन दिया. तो मैं ये बता रहा हूं कि एक ग्रामर के चलते क्या हुआ, यू विल बी सरप्राइज टू नो, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर नोइंग इट. पूरे वर्ल्ड में संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके वर्ड को अगर आप चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स ए मैंगो, इट इज इंग्लिश सेंटेंस. राम ईट्स ए मैंगो, इसको चेंज करो, मैंगो ईट्स राम. नाउ इफ यू चेंज द प्लेस ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस, नाउ मीनिंग ऑल्सो चेंजेस. इन संस्कृत, रामः आम्रम खादति, दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ राम ईट्स ए मैंगो इन संस्कृत. रामः आम्रम खादति, Amram Ramah Khadati, Khadati Ramah Amram, no change in the sentence. This is the only language in the world. In older Latin, we find some of the features like this. But this is the feature which is found in Sanskrit. No other language of the world today has this feature. Why it is happening? Because Sanskrit is a Vibhakti Pradhana Bhasha. Vibhakti means Chinna. Every word of Sanskrit has some vibhakti. Therefore, because of that vibhakti, if the place of that word is changing, the meaning is not changing. Although all the languages of the world, they follow some sort of vibhakti. But Sanskrit, vibhakti system of Sanskrit is the fantastic. Now, this is one, because time is very limited, therefore I am rushing through. This is one thing. The second thing, diction and vocabulary of Sanskrit is fantastic. You will be surprised to know that for water, there are 200 words in Sanskrit. 200 words. I will tell you only 12 to 13 words
which are very commonly used, but if you go from Rig Veda up to today's Sanskrit, or especially Sankaracharya Sanskrit, you will find more than 200 words for water. Now I am telling you about 10 to 12, only 10 to 12 because time is very limited. See, these are the words which are used for water in Sanskrit. The first is jal. ये तो सबको मालूम है, जल, it is very common. वारी, it is pure Sanskrit word. नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प. These are the main 12 words. No language of the world has such rich diction. From one word in Sanskrit, one root of Sanskrit, you can make minimum 20 words. Minimum 20 words. I would have made all those words, but for shortest time, we will, after Madam starts Sanskrit in this university, I will come and give the lecture. You may be knowing, there is one book, Vishnu Sahasranam. Lord Vishnu has 1000 names. Who has name? अपना तो एक ही नाम है, दो नाम भी नहीं है, नहीं तो एक पप्पू हो गया, एक भूषण हो जाएगा, दो ही नाम है. Lord Vishnu 1000 names. Durga 500 names. Lord Krishna 250 names. हमारा जो जनरेशन है उसको मालूम है क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या बनाया है. We need to know it. I am not telling. If you go to net, go to Google, even Google में भी सारी जानकारी लगी हुई है. The diction of English, Sanskrit language is more than 1 crore words. 1 crore words. It is even more than that, but I am telling, if you go and Google what is the number of words in Sanskrit, you will find. If you go in Google, you will put what is the number of words in English, you will also find. I am not deprecating any language, I am just telling how rich is our culture, how rich is our tradition, how rich is our heritage. We need to know it, we need to understand it. Now this is one thing. The second thing is the brevity. How maximum things are expressed in minimum ways. How one word expresses so many things. This is the brevity, because I am talking sutras. What is sutra? You must have learned sutras in chemistry, physics, biology. There are sutras in Sanskrit also. Therefore, if one word is told, it compromises so many meanings and so many words. And all these things have been explained in Ashtadhyayi. Now, I was talking about Patanjali because my PhD is on Patanjali. Patanjali has written the book named Mahabhashya. Mahabhashya is a very voluminous book. It is a commentary on Katyayan and Panini, Ashtadhyayi. I am a student of Sanskrit. I am a student of philosophy, Indian philosophy, because I had both these subjects in UPSC. And you know that if you go to UPSC, you have to study a lot. I have studied Western philosophy. I have studied Western management. I have studied relative religion also. Now, I will give you one definition which Patanjali has given in Mahabhashya. He has defined what is word. शब्द किसको बोलते हैं. During 34 years of service and study, I have not found anywhere the definition of word like this. See, what is the definition? Beautiful definition. And when was Patanjali born? Patanjali was born in the 1st century AD. About 2,400 years back he was born. Now you can think how was the country. Now about 2,400 years back, he is defining the word. What is word? He is telling the first feature of word is श्रोत्रोपलब्धि. श्रोत्र means कान, उपलब्धि माने सुना जाना या वहां पे जाना. तो शब्द का पहला लक्षण है वो कान से सुना जाता है, श्रोत्रोपलब्धि. But this is not sufficient. All the sounds which are heard by ear are not word. They may be sound, they may be dhwani, but not word. Then what is telling? Buddhi nirgrahya.
उसको बुद्धि से समझना होता है, माइंड में जो समझ में आएगा मीनिंग, तब देन इट इज वर्ड. बट अगेन ही इज टेलिंग दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट. देन व्हाट इज प्रयोगे नाभि ज्वलितः. वो प्रयोग से समाज में, प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए. अब मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जो हमको समझ में भी आ रहा है, कान से भी सुनाई पड़ रहा है, बट इट इज नॉट इन द प्रैक्टिकल लाइफ, देन इट इज नॉट वर्ड. नोबडी कैन अंडरस्टैंड इट. अगेन ही इज टेलिंग the most important thing, scientific thing he is telling, आकाश देशः शब्दः. ये जो ध्वनि है, शब्द है, वो स्पेस से ट्रेवल होता है. श्रोत्रोपलब्धि, कान से सुना जाता है. बुद्धि निर्ग्राह्य, दिमाग से समझा जाता है. प्रयोगे नाभि ज्वलितः, प्रयोग से प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उजाला देते हैं. और लास्ट में क्या है, इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस. आकाश देश है, ये जो शब्द है वो आकाश देश में है, बिकॉज यू नो साउंड हैज टू ट्रेवल. नाउ हाउ वाज पतंजलि नोइंग दैट साउंड इज ट्रेवलिंग? बिकॉज ही हैज यूज्ड द वर्ड आकाश. एंड अगेन आई विल गिव वन एग्जांपल ऑफ कालिदास. Later I have explained some of the thing Kalidas, but here one thing I am telling. Kalidas has written one Mahakavya epic, that is Kumar Shambho. In Kumar Shambho, the birth of Lord Kartikeya is described. भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं और माँ पार्वती उनसे विवाह का प्रस्ताव ले रही है, बट लॉर्ड शिवा इज इन पिनेंस. तो ही इज नॉट एग्रीइंग टू मैरी मां पार्वती. तो वो जो वृत्रासुर राक्षस था, उसको मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म होना जरूरी था, अदरवाइज ही वुड नॉट हैव बीन किल्ड. तो ये शादी होना जरूरी है. तो देवताओं ने वहां पे कामदेव को भेजा भगवान शिव के पास. कामदेव इज द गॉड ऑफ सेक्स, और बोला कि आप जाके उनको प्रभावित करो. तो कामदेव वहां गया और भगवान जो शिव थे वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कामदेव की ओर देखा एंड कामदेव वाज बर्न टू एसेज. इसीलिए उसको अनंग बोलते हैं. अनंग, अनंग का ऐसा अर्थ है कि जिसको अंग नहीं है बट स्टिल ही इज एक्टिव. तो उसमें कालिदास ने एक श्लोक लिखा है कि जैसे ही देवताओं ने देखा कि भगवान शिव नाराज हो गए और अपनी आंख से उस त्रिनेत्र से उसको जलाने दौड़े, तो देवता लोग चिल्लाए कि भगवान रुक जाओ, ऐसा मत करो. तब बाय द टाइम उनकी आवाज आती, तब तक भगवान शिव की आंख से जो प्रकाश निकला वो उसको जला चुका था. इट मीन्स लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड. क्रोधम श्लोक है, कोई भी देख सकता है. क्रोधम प्रभु संहर संहरेति, हे प्रभु अपने क्रोध को रोको. क्रोधम प्रभु संहर संहरेति यावद गिरह खे मरुताम चरंती. यहां भी एक और आया है, यावत जब तक गिरह वाणी, खे आकाश में, मरुताम मरुत हवा, चरंती जब तक देवताओं की इस वाणी को आकाश के द्वारा हवा भगवान शंकर तक ले जाता, तावत सवहनिर, वहनी आग को बोलते हैं, तावत सवहनिर भवनेत्र जनमा. शंकर के नेत्र से जो अग्नि उत्पन्न हुई उसने कामदेव को जला दिया. अब देखो यहां पे पतंजलि ने तो केवल आकाश लिखा, आकाश देश. कालिदास ने क्या लिखा? गिरह, गिरह माने वाणी, खे माने आकाश, मरुत माने हवा. वाणी कैसे ट्रेवल होती है? आकाश के थ्रू ट्रेवल होती है और हवा उसमें चाहिए. अगर हवा नहीं हो वैक्यूम में, वाणी ट्रेवल नहीं होती. तो ये सारी चीजें कहां से आई? ये सारी चीजें हमको जानने की जरूरत है. आज का जो साइंस है वो साइंस हमारे लिए एसेंशियल है, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं. लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या सोचा, हमारे पूर्वजों ने क्या लिखा, हमारे शास्त्रों में क्या है, उसको भी साइंटिफिकली समझना जरूरी है. और सबसे मजे की बात है, लोगों को नाम भी मालूम नहीं. इतना दुर्भाग्य है हमारा. एक से एक बड़े, चूंकि मैं लिंग्विस्टिक का विद्यार्थी रहा हूं, तो जर्मनी के, इंग्लैंड के, अमेरिका के जितने लिंग्विस्ट हुए सबको मैंने पढ़ा है. एक भर्तृहरि नाम के हमारे यहां बहुत बड़े विद्वान हुए, 6th सेंचुरी एडी उनका टाइम है. उन्होंने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम है वाक्य पदीय. ब्लूमफील्ड का जब मैंने लिंग्विस्टिक पढ़ा एमए में, तो ब्लूमफील्ड के लिंग्विस्टिक में लिखा हुआ था कि सेंटेंस इज द मिनिमम यूनिट ऑफ लैंग्वेज.
सेंटेंस जो है वो लैंग्वेज का सबसे छोटा है, वर्ड नहीं है, क्योंकि जिससे वर्ड से मीनिंग नहीं निकलता। अगर हमने आम बोल दिया तो आम डज नॉट मीन एनीथिंग। आम ये फल है कि किसी का नाम है क्या है, लेकिन आम आता है ये अगर बोला तो इसका अर्थ निकलता है। तो ब्लूमफील्ड ने क्या कहा कि सेंटेंस जो है ये लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट है। वाक्य पदीय में भर्तृहरि ने लिखा है कि वाक्य जो वो पदों से बनता है और दिस इज द लैंग्वेज, उन्होंने वर्ड यूज किया है, उन्होंने बोला कि ये वाक्य लैंग्वेज है। तो आज से समझिए कि 1800 साल पहले हमारे भर्तृहरि ने बोला कि वाक्य जो है सो हमारी भाषा है। तो और वाक्य पदीय पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और फिर आपके हार्वर्ड में अभी रिसर्च हो रहा है। जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटीज हैं, यू गो एंड ऑन गूगल, जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटी है जिन यूनिवर्सिटी में संस्कृत पे पढ़ाई हो रही है, संस्कृत रिसर्च हो रहा है। और इट इज ए वेरी मैटर ऑफ पेन फॉर अस कि जर्मनी हैज प्रिपेयर्ड वन संस्कृत कोर्स, learning Sanskrit course for the world, and they have opened so many centers in Italy, France and America, and they are teaching Sanskrit to the world, and the place where Sanskrit originated we are lagging behind. So all these things are available on the net, and you can go and see what people are learning about Sanskrit. ये तो हमने आपको ग्रामर लिंग्विस्टिक की थोड़ी बात बताई। अब साहित्य की अगर आप बात करते हैं, लिटरेचर की, तो यू विल फाइंड अनपैरेलल्ड एंड फैंटास्टिक लिटरेचर इन संस्कृत। चाहे भास हो गए, चाहे कालिदास हो गए, चाहे आपको भर्तृहरि हो गए, चाहे भारवी हो गए, चाहे भास हो गए, चाहे मृष्कटिक के शूद्रक हो गए, चाहे विशाखदत्त, एकदम देयर इज अ बिग क्यू ऑफ राइटर्स जिन्होंने कविता लिखा, जिन्होंने काव्य लिखा, जिन्होंने नाटक लिखा। आपने मृष्कटिक नाम सुना होगा, उत्सव एक पिक्चर बनी थी जिसमें रेखा और कोई था, वो इसी मृष्कटिक पे बनी हुई थी जिसको शूद्रक ने लिखा है। तो एकदम भास्ट। और इसमें अभिज्ञान शाकुंतल नाम का एक नाटक है जिसको कालिदास ने लिखा है। ऐसा बताते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः चत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। काव्य में सबसे मजेदार नाटक होता है, जो एपिक है उसमें सबसे मजेदार नाटक होता है, और उन नाटकों में भी सबसे मजेदार अभिज्ञान शाकुंतल है, और उसमें भी मजेदार अभिज्ञान शाकुंतल का चौथा अंक है, और उसमें भी मजेदार 4 श्लोक है, और उसमें भी 4 श्लोक में एक मजेदार श्लोक है। तो ये जो हमारे यहाँ जो परंपरा है, हमारे यहाँ जो रिच लिटरेचर है, और आपने गेटे का एक नाम सुना होगा, गेटे वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर ऑफ जर्मनी। जब उसने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद पढ़ा तो ही बिकेम मैड, और बताते हैं, ऐसी कथा है कि वो अभिज्ञान शाकुंतल के प्रति को, कॉपी को सर पे लेके नाचा था, और उसने कहा था, जर्मनी में उसने कहा था, मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में या हिंदी में, उसने कहा था कि ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु एक जगह नहीं आती, स्वर्ग और पृथ्वी एक जगह नहीं है, लेकिन अगर ये चारों को एक जगह देखना है तो गो एंड रीड अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास। आप कभी गेटे का होगा तो पढ़ना, गेटे को मालूम है कालिदास के बारे में, लेकिन हमारे बच्चे को कुछ मालूम नहीं है। हमने पढ़ाया नहीं बच्चे को, उनको बताया ही नहीं, हमने तो बोला कि हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो मैं बोलता हूं बच्चों, इन सारी चीजों को, आज का जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसको भी जानने की जरूरत है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट आवर हेरिटेज, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर ट्रेडिशन, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर कल्चर। जो हमारी, ठीक है, हमारे समाज में बहुत सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं, हमारे समाज में ऐसा नहीं कि हर एक चीज अच्छा हुआ है, लेकिन छोड़ो उसको, जो अच्छी चीजें हैं उसको हमको आगे साथ में लेकर चलना है। इसके बाद मैं रेफरेंस आपको देते जाता हूं। 1st सेंचुरी एडी में भरत नाम के एक ऋषि हुए जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा। और नाटक क्या है, संवाद क्या है, म्यूजिक क्या है, गीत क्या है, राग क्या है, ताल क्या है, लय क्या है, उसमें लिखा। और नाटक कैसा होना चाहिए, नाटक क्या 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 एलिमेंट होता है, वो उसमें उन्होंने बताया। और भरत के नाट्य शास्त्र के अलावा भी बहुत हुए, उनका भी नाम नहीं लूंगा, बट ही वॉज द पायोनियर ऑफ नाट्य शास्त्र, ड्रामेटोलॉजी। और अभी तो सबको मालूम है योग सूत्र का बारे में, योग तो सब कोई कर रहा है। अभी दुनिया में 300 मिलियन लोग योग कर रहे हैं अभी, एज पर द रिकॉर्ड 300 मिलियन।
और पतंजलि का जो योग सूत्र है, दैट इज द मोस्ट साइंटिफिक ट्रीटीज ऑन योगा। अगर आपको टाइम मिलेगा, मैं अब तक 50 लोगों से पूछ चुका हूं, 50 लोगों में से एक आदमी ने भी उस ओरिजिनल किताब को नहीं देखा है। आप देखो उस किताब को, उस किताब में न तो कहीं ईश्वर की चर्चा है, उस किताब में न तो कहीं आत्मा की चर्चा है, उस किताब में न तो कहीं स्वर्ग की चर्चा है, उस किताब में न तो कहीं नरक की चर्चा है। चर्चा किसकी है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका साइंटिफिक वर्णन किया हुआ है कि व्हाट इज ध्यान। आप ध्यान करोगे तो क्या होगा, आपका माइंड जो है सो भाग रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे। पॉजिटिव साइकोलॉजी तो अभी आई है 50 साल पहले। यहां जो फ्राइड के साथ जो साइकोलॉजी शुरू हुई, कार्ल जूंग के साथ, वो तो पैथोलॉजिकल साइकोलॉजी थी। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बीमारी होती है, लेकिन उस बीमारी को कैसे दूर करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फ्राइड का पूरा पढ़ो, कार्ल। लेकिन जब पॉजिटिव साइकोलॉजी आई तो पॉजिटिव साइकोलॉजी ने बताना शुरू किया कि देयर आर टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन इंप्रूव आवर मेंटल थिंग। और 90s के पहले तो फॉरेन कंट्री में मानते ही नहीं थे कि ब्रेन चेंज होगा। वो तो बोलते थे कि बार ब्रेन में जो हो गया सो हो गया। इलास्टिसिटी थ्योरी ऑफ ब्रेन जो है सो 90s में आई, और हमारे यहां आज से 2300 साल पहले पतंजलि बोल रहा है कि ये सारा टेक्निक आप करके अपने दिमाग को चेंज कर सकते हैं। तो पतंजलि का जो योग सूत्र है, एवरीबडी शुड रीड इट। इट इज ए ब्यूटिफुल ट्रीटीज, साइंटिफिक ट्रीटीज, एंड बेस्ड अपॉन द इंपीरिकल नॉलेज, बेस्ड अपॉन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड। उन्होंने माइंड को जो एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज माइंड, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, कैसे हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स। आप उसको देखना कभी भी। और अभी चंद्रयान अपना सफल हुआ है, तो इसके संदर्भ में हमारे कुछ जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनके नाम हमारे बच्चों को मालूम हुए हैं। आर्यभट्ट 5th सेंचुरी एडी में हुआ था। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की सबसे जो फेमस किताब है उसका नाम है सूर्य सिद्धांत, या जिसको आर्यभट्टी बोलते हैं। आप कोई भी हिस्ट्री किताब उठा लो, एनसीईआरटी की, आप रोमिला थापर की किताब उठा लो, डीएन झा की किताब उठा लो, आर एस शर्मा की किताब उठा लो, हबीब इरफान की किताब उठा लो, रामचंद्र गुहा की किताब उठा लो, स्मिथ की किसी किताब उठा लो, हर एक किताब में लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट मैन ऑन दिस अर्थ टू मेजर द रेडियस ऑफ द अर्थ। और आज भी आर्यभट्ट ने जो लिखा है वो रेडियस और आज का रेडियस में थोड़ा बहुत फर्क है, बिकॉज अर्थ का भी रेडियस चेंज होता रहता है। उसने डायमीटर के बारे में लिखा है। ही हैज यूज्ड 2 वर्ड्स। उसने लिखा है सौर मंडल। ही हैज यूज्ड द वर्ड सौर मंडल। सौर मंडल का अर्थ है ऐसा मंडल जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। एंड ही हैज यूज्ड द वर्ड भूगोल। भूगोल, भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल। और इट इज ए वेरी साइंटिफिक ट्रीटी। If you find time, just go through it. It is very mathematical, so lots of mathematics in there. सूर्य ग्रहण कैसे होता है, आज एक बताओ। आज हमारे पंचांग से पता चलता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, और विदेश में आप जाओगे तो टेलीस्कोप से आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ता है। आज से हजारों साल पहले हमारे लोगों ने कैसे बताया कि आज भी आप पंचांग देखोगे तो पंचांग में एग्जैक्ट लिखा रहता है इस तारीख को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा। तो दिस वॉज द नॉलेज, दिस वॉज द थिंग्स विच आवर एंसेस्टर हैव डन। उसके बाद वराहमिहिर बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हुए, ब्रह्मगुप्त बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हुए, भास्कराचार्य बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हुए, जिन्होंने बीजगणित और शुल्ब सूत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। शुल्ब सूत्र जो है, इट इज द ओरिजिन ऑफ अर्थमेटिक। पहले हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ के लिए हवन वेदी बनाते थे, आपको रिचुअल का पीठ, और उसको मेजर करते थे कि बिकॉज दैट वाज वेरी एग्जैक्ट। तो उसमें अर्थमेटिक उसमें पैदा हुआ। तो ये सारी चीजें, दीज आर द थिंग्स ऑफ हिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात बताते हैं कि आवर कल्चर, आवर इंडिया हैज बीन ए प्लेस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारे यहां 6 दर्शन है, यहां पे 6 दर्शन है। व्हाट इज दर्शन? दर्शन मीन्स टू सी द ट्रूथ। आपने जिस ट्रूथ को देखा उसको हमने अलग ढंग से देखा, दैट इज ऑल्सो अलाउड। पहला दर्शन मीमांसा दर्शन है, दूसरा दर्शन सांख्य दर्शन है, तीसरा दर्शन योग दर्शन है, चौथा दर्शन न्याय दर्शन है, पांचवा दर्शन आपको वैशेषिक दर्शन है, और छठा दर्शन वेदांत दर्शन है। और वेदांत में भी क्या है? शंकराचार्य का अद्वैत है, तो द्वैत है, तो विशिष्टाद्वैत है, द्वैत है।
whatever you want to express everything is accepted here. This is the greatest example of tolerance in India. हम हर एक विचार को एक्सेप्ट करते हैं, हमें कभी नहीं बोलते कि हमारे नहीं यही विचार सही। नो, आप अगर ईश्वर को निर्गुण देखना चाहते हो तो निर्गुण देखो, आप सगुण देखना चाहते हो सगुण देखो। आप बोलते हो कि ईश्वर अद्वैत है तो वो भी सही है, नहीं मैं बोलता हूं द्वैत है वो भी सही है। दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज द थिंग विच आवर कल्चर हैज। एंड अगेन हमारे यहां कुछ महावाक्य हैं, देयर आर सम महावाक्य, वी कांट ट्रांसलेट महावाक्य इन इंग्लिश बिकॉज देयर इज नो वर्ड। क्या महावाक्य है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? मैं ईश्वर हूं, दिस इज द अनाउंसमेंट ऑफ आवर ऋषिज। अहम शिवोहम, मैं शिव हूं। अब इससे बड़ी तो कोई चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती है। हमारे ऋषियों ने अनुभव किया कि हम में ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। और फिर क्या कहा? सर्वम खलुदम ब्रह्म, इस दुनिया में जितना चीज है सब ब्रह्म है। तो सब ब्रह्म है तो किसको मारने का भाई, काहे दुश्मनी करने का? उसी से तो पैदा हुआ। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा कुटुंब है। ये भावना कहां से आई? इसका जेनेसिस क्या है? इसका जेनेसिस है हम जब सबको ईश्वर की संतान मानेंगे तो हम किसको हार्म करेंगे, हम किसको मारेंगे? हिंसा क्यों होती है? हिंसा होती है, हिंसा का जो मेन कारण है वो ईगो है। हिंसा का जो मेन कारण है वो घमंड है। आप अलग हैं, मैं अलग हूं, इसलिए हिंसा होगी। हमने बोला कि भाई तुम भी ईश्वर की संतान हो, मैं भी ईश्वर की संतान हूं, तो काहे को हिंसा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमने सबके मंगल कामना की, हमने किसी विशेष वर्ग की मंगल कामना नहीं की दुनिया में। और पर आप मानो तो छोड़ दो, अगर आप शांति मंत्र पढ़ोगे तो शांति मंत्र में अंतरिक्ष, पंच जो महाभूत हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इसके बारे में कहा गया है। वनस्पतयः शांति, ओम गुंग अंतरिक्ष शांति, वनस्पति की शांति हो। अभी इकोलॉजी पे बात हो रही थी और मुझको बड़ा आनंद हुआ कि उसमें जितने लोग थे सब संस्कृत का श्लोक बोल रहे थे। पहली बार मैंने सुना। हमारे सिद्धार्थ जी थे, उन्होंने कहा धर्मस्य मूलम अर्थः। हमारे गोखले जी ने 3-4 बार बोले। क्या बोले गोखले जी? शुभम भूयात्, और भी 2-3 बोले वो, उन्होंने और भी कोट किया। 34 साल के सर्विस में इतने सोफिस्टिकेटेड कॉन्फ्रेंस में मैंने पहली बार संस्कृत सुना, बड़ा आनंद हुआ। तो ये सारी चीजें बताने की चीजें हैं। हमारे यहां इन सारी चीजों को बच्चों को आनी चाहिए कि ऐसा ऐसा क्यों भाई। ये जो सारी चीजें हैं, तो मैं बता रहा था कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ब्रह्म हूं। देयर इज नथिंग मोर देन दैट। व्हाट इज दिस? दिस इज द बिगेस्ट। बुद्धा ने क्या कहा? हर एक व्यक्ति के अंदर बुद्ध छुपा हुआ है। ये बुद्ध का जो वचन है, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अंदर सारा समाया हुआ है। आप गीता के विश्व रूप दर्शन जो भगवान कृष्ण का है, आप उसको देखोगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हमारे अंदर सब पैदा होता, हमारे अंदर सब समाप्त हो जाता। ये जो दर्शन है, इससे टॉलरेंस पैदा होता है। इस दर्शन से हम हर एक को अपनाते हैं, क्यों किसी को प्रतिहिंसा करने का। और जो साहित्य हमारे यहां रचना हुई, ये साहित्य रचना क्यों हुई? क्योंकि एवरीबडी वॉज फ्री टू राइट, एवरीबडी वॉज फ्री टू थिंक, एवरीबडी वॉज फ्री टू स्पीक। महाभारत है, महाभारत में कितने श्लोक है बच्चों? कोई बताएगा कितने श्लोक हैं? हाउ मेनी कॉपलेट्स इन महाभारत? 1,00,000। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इतना बड़ा साहित्य है। और महाभारत को पढ़े हुए तो मृत्यु से लेके मोक्ष तक की सारी बातें हैं। लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, धोखा भी है, झूठ भी है, गीता भी है, हर एक चीज है। क्योंकि लाइफ इज एवरीथिंग। तो ये जो हमारा लिटरेचर है, ये लिटरेचर हमको जानने की जरूरत है। उसके बाद हमारे 18 पुराण हैं। एक पुराण पढ़ो तो उसमें 6 महीने लग जाते हैं पढ़ने में। तो उसमें पुराण क्या है? पुराण, देयर आर आवर स्टोरीज। हमारी भारतीय संस्कृति कंसेप्ट है, उसमें स्टोरीज हैं।
हमारी परंपराएं हैं, हमारी उसमें मर्यादाएं हैं, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। अभी पुराण का एक सीरीज निकल रहा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना कभी टाइम मिलेगा तो। और सबसे सोफिस्टिकेटेड जो हमारा बुक है वो है उपनिषद। उपनिषद में न तो स्वर्ग की बात है, न तो नरक की बात है। उपनिषद में क्या बात है? व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट अल्टीमेट ट्रूथ टू अस, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट अल्टीमेट ट्रूथ दिस अर्थ। और देयर आर 101 उपनिषद। सारे उपनिषद में आप देखो, उपनिषद में क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इज नॉट गॉड, ब्रह्म इज अल्टीमेट एनर्जी। जिस एनर्जी से दुनिया, जिसको बिग बैंग किसी ने कहा कि उससे पैदा हुई, तो उसमें इन सारी चीजों की चर्चा हुई है उपनिषद में। आपको कभी टाइम मिलना तो उपनिषद इज फैंटास्टिक वेरी। आप ईश उपनिषद पढ़ो, ईश, केन, कठ, मुंड, मांडुक, सत्य में वो जयते उपनिषद से ही लिया हुआ है अपना। तो ये सारी चीजें हमारी कल्चर में आनी चाहिए। तो मैं अभी आपको, मैंने जो लिटरेचर बताया, ये ह्यूज लिटरेचर है। ऐसे 50 भी अगर आप अपने रूम रख दे तो उसमें लिटरेचर नहीं आएगा। इन सारी लिटरेचर से भारतीय संस्कृति बनी हुई है। हमारा बुद्धिज्म है, हमारा जैनिज्म है, हमारे डिफरेंट। और सबसे मजे की बात कि हमने नास्तिक दर्शन को भी एक्सेप्ट किया है। हमारे यहां 2 दर्शन है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। हमने, भाई तुम भी बोलो ईश्वर नहीं है। चार्वाक, यावत जीवेद सुखम जीवेद, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेद, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। हमारे लोगों ने स्वर्ग नरक की बात की, और चार्वाक क्या बोल रहा है? अरे भाई, स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। जब तक जियो पूरा घी पियो, कर्जा लेके घी पियो। ये चार्वाक का बोल रहा है 6th सेंचुरी एडी में। हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। जो लोकायत दर्शन है उसको भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, उसके मानने वाले कम है, लेकिन एक्सेप्ट किया हमने। आज हम चार्वाक दर्शन पढ़ते हैं, हम एमए में और यूपीएससी में चार्वाक दर्शन है। तो जिसने वेद को माना उसको भी हमने प्रतिष्ठा दी, जिसने नहीं माना उसको भी प्रतिष्ठा दी। ये भारतीय संस्कृति है। तो ये सारी चीजें हमारे बच्चों को मालूम होनी। और ये सारी चीजें जब कल्चर में आती हैं तो कल्चर कैसा बनता है? टॉलरेंट बनता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनता है। और आप इतिहास की कोई भी किताब पढ़ लो। मैडम कितना टाइम है? 5 मिनट्स। हाँ, 5 मिनट्स। मैं रिकैप्चुलेट करता हूं क्योंकि सर को भी बोलना है और सर को जाना है। तो आप हिस्ट्री कोई किताब उठा लो, वर्ल्ड इकोनॉमी किताब, कोई भी किताब, अंग्रेज लोगों के आने के पहले, बिफोर द इंग्लिश केम टू दिस कंट्री इन अर्ली 17th century, 18th century, India was the richest country of this world. Richest country. It is in the history book. I am not telling. The GDP of India was 30% of world GDP. आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड के जीडीपी का 30% जीडीपी इंडिया का है, देन व्हाट इज द रिचनेस ऑफ दिस कंट्री? और जब अंग्रेज 1947 में जब इंडिया को छोड़ के गए तो क्या जीडीपी था? 0.001%। खत्म कर दिया कंट्री को। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो मत मानो, मैं आपको कोट करता हूं। एक ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक cooperation and development. It is in France. It conducted one survey on world economy from 1st century AD to 1913 under the leadership of Angus Madison. Angus Madison was a great economist, and the conclusion of that survey was India was the richest country of this world and the second richest country was China. And they have written that the entire economy was broken because India was the leading textile exporter. और आपको एक छोटी सी कथा बताता हूं। टॉलमी का आपने नाम सुना होगा, जो ग्रीक हिस्टोरियन था। उसने लिखा है कि भारत इंडिया का जो ढाका का मलमल था, दैट वाज वेरी पॉपुलर एमॉन्ग्स द लेडीज ऑफ रोम। और वो लोग अपने हस्बैंड को बहुत प्रेस करके वो मलमल मंगाते थे, जिससे वहां का खजाना खत्म हो गया था। तो ही इज कंप्लेनिंग इन द दरबार कि काइंडली टेल दिस लेडी दैट दे शुड नॉट आस्क फॉर मलमल ऑफ ढाका ऑफ इंडिया।
ये हमारा रिचनेस था. तो वी शुड नो इट. इट इज नॉट ए फॉल्स नैरेटिव, इट इज ए ट्रूथ, इट इज रिटन इन एवरी हिस्ट्री. और अगेन मैं आपको बोलता हूं, आपको टाइम मिलेगा तो एक किताब पढ़ना जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री. दिस बुक हैज बीन रिटन बाय धर्मपाल. धर्मपाल was a Gandhian and he wrote this book in Wardha Ashram, Gandhi Ashram. He has not told anything in the book from you. He has quoted the reports of English people, English officers. He has quoted the reports which were submitted to Governor General Munro, Thomas Munro of Madras Presidency in 1922. He has quoted the report of Adam William of Bengal Presidency. He has quoted the report of Lord Lytner of Punjab Presidency. And उसमें उनके रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि every village of India had a school. And since the Britishers had taken over, ये स्कूल जो थे, ये स्कूल हमारे जो राजा थे उसको सपोर्ट करते थे और गांव के लोग उसको देते थे. लेकिन ब्रिटिश पीरियड में पूरा सिस्टम चेंज हो गया तो ऑल मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वर क्लोज्ड. उसमें लिखा है कि उसमें पाठशाला थे, उसमें मदरसा थे, उसके बाद उसमें गुरुकुल थे और लिटरेसी जो था, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ये 3 बच्चों को पढ़ाया जाता था. आपको टाइम मिलेगा तो पढ़िए. इट इज ब्यूटीफुल बुक. तो ये हमको जान, और वो फिर खत्म हो गया वो. और अगेन इट वाज ब्लेम्ड दैट बिकॉज ऑफ इंडियन कल्चर दिस थिंग्स हैड हैपेंड. नाउ द लास्ट थिंग, because only 2 minutes are left of 5 minutes. तो मुझको श्री राम जी की याद आ रही है, बार बार वो टाइम देख रहे थे. तो सी फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिक्स सेज दैट साउंड is energy. There is no doubt in it. Sound impacts our brain and body in a very big way. Music is very pleasing and very harsh sound is very annoying. In the entire world, Sanskrit is a language which has got maximum nasal sounds. Nasal sounds. What are nasal sounds? Ya, ma, no. These are the. Just I am chanting one slok. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि. एवरीवेयर नो इज देयर. नो. व्हाट हैपेंस व्हेन यू chant nasal sounds? There is vibration in the nose because these nasal sounds are articulated by nose, because there are different sound, guttural sound from this कंठ से, palatal sound palate से, labial sounds आपको ओठ से, and nasal sounds. तो संस्कृत has got maximum nasal sound. When you chant any sloka or any mantra, I am not talking about religion and spiritualism. No, not at all. I am just telling you about the sound. When you chant some sloka or some mantra of Sanskrit, what happens? Lots of nasal sounds are produced. And when nasal sounds are produced, there is a nitric oxide in the nose, in the sinus. You can go and search any physics book, nitric oxide. Those nitric oxide elements are activated and they are very relaxing. Therefore, if you chant 4 or 5 Sanskrit slokas, after chanting, you will find that you have taken tranquilizer. It is a scientific thing. You can just experiment it. Or suppose that any nasal sound, anywhere there is vibration in the nose, if there is, this is the reason that when you do Bhramari pranayama, if you do it, suppose that if you are not able to sleep in the night, do it for 2 minutes, you will sleep. If you are feeling very restless, just do 5 minutes Bhramari pranayama. You will feel that every, अभी मैडम बता रही थी ना कि हमारे बच्चे बड़े रेस्टलेस हैं और मरीन ड्राइव पे सुबह हमको बहुत दिखते हैं बच्चे, कॉलेज छोड़ छोड़ के दिखते हैं. तो जब भी आप, ठीक है वो लाइफ है, जब भी आपको बेटा रेस्टलेसनेस महसूस हो, मैं फोकस बढ़ाने पे भी लेक्चर देता हूं. एक कभी आऊंगा मैडम का टाइम लेके. अब अगर आपको फोकस बढ़ाना है तो रोज सुबह 5 मिनट और रोज शाम में भ्रामरी प्राणायाम करो. भ्रामरी प्राणायाम माने आंख बंद करके
जितना बोल सकते हो करो। आप देखो कि आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी संस्कृति है, और भारतवर्ष में जितने लोग रहते हैं सब लोगों ने संस्कृति बनाई है, इसको रखना है। और मैं मोहम्मद इकबाल का लास्ट का एक शेर कोट करता हूं, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। Vishwa, thank you so much for that great session. I would now request Honorable Vice Chancellor HSNC University, Professor Dr. Hemlata Bagla, to kindly felicitate Dr. Bhushan Kumar Upadhyay. आज हम शुरू